پیارے دوستو، 9 محرم منگل کے دن 2 چھوٹے چھوٹے کام کر لیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ نے منگل کے دن 9 محرم کو یہ 2 چھوٹے چھوٹے کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 2 کام کرنے سے رب العالمین آپ کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دے گا، وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، اور اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، آپ کو رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ رب العالمین آپ پر اپنے انعامات کی بارش برسا دے گا۔ یہ 9 محرم کا بہت ہی پاورفل اور لاجواب وظیفہ ہے، رزق و دولت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ یقیناً اگر آپ یہ تسبیح، یہ 2 چھوٹے چھوٹے کام کریں گے تو رب العالمین آپ کی دل کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ عزت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، کوٹھی بنگلہ شہرت مال چاہتے ہیں، جو شے بھی آپ چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے مانگے، رب العالمین آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، مشکلات کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ رب العالمین آپ پر اپنے خاص انعامات فرما دے گا۔ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ رب العالمین آپ کے دل کو کشادہ فرما دے گا، آپ کے رزق کے اندر کشادگی پیدا فرما دے گا۔ رب العالمین آپ کے دل کے اندر نور پیدا فرما دے گا۔ یہ صرف اور صرف 9 محرم کا وظیفہ ہے، منگل کے دن کی خاص تسبیح ہے۔ آپ نے 2 عمل کرنے ہیں، بس 2 عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے رب العالمین آپ پر کیسے اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے، کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ عزت، شہرت، شادی، جو بھی چیز آپ کے دل کے اندر خیال آئے گا رب العالمین آپ کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ سے 1 لاکھ مانگیں گے، مالک 70 کروڑ عطا فرما دے گا۔ اتنا پاورفل اور لاجواب وظیفہ ہے، اور یہ خاص وظیفہ 9 محرم الحرام کا وظیفہ ہے۔ اسے تحفہ سمجھ کر اپنی زندگی کا پہلا وظیفہ سمجھتے کیجئے، ضرور رب العالمین آپ کو اس کے انعامات عطا فرمائے گا۔ ایک تسبیح پڑھنے سے اگر زندگی کے اندر بہاریں آ جائیں، اگر زندگی بدل جائے، زندگی کے اندر خوشحالی آ جائے، اگر ایک تسبیح پڑھنے سے رب العالمین کا فضل ہو جائے، رب العالمین کی رحمت کے دروازے کھل جائیں، رب العالمین کا اگر آپ پر رحمتوں کا سایہ ہو جائے تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ نے اپنے سارے کاروبار چھوڑ کر یہ تسبیح کرنی ہے، یہ 2 کام لازمی کرنے ہیں، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ یہ میں خاص وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اپنی کتاب مدنی سورہ کے اندر بھی اسے بیان فرمایا ہے، وظیفہ بتایا ہے، لیکن وہ الگ الگ ہے۔ ہم وہ 2 وظیفوں کو، 2 باتوں کو، 2 کاموں کو جمع کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ 2 کام اگر آپ کر لیں گے، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، تو یقیناً آپ کی ہر دعا قبول رب العالمین فرمائے گا۔ ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، رب العالمین آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، رب العالمین آپ کے رزق کے اندر کشادگی پیدا فرما دے گا، اپنا خاص انعامات آپ پر عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے مکمل سننا ہے۔ 2 چھوٹے چھوٹے کام آپ نے مکمل سننے ہیں، اس کا طریقہ بھی آپ نے جاننا ہے۔ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر نہیں، سکپ کر کے نہیں، بلکہ مکمل ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے۔ جو دوست اب ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر یا سکپ کر کے دیکھ رہے ہیں، اگر وہ عمل کے کسی ایک حصے سے بھی رہ گئے تو سارے سال کا پچھتاوا ان کے دل میں ہوگا، ساری زندگی کا پچھتاوا ہوگا، پورے سال کا، کہ شاید 9 محرم کو میں یہ 2 کام کر لیتا تو رب العالمین کا خاص مجھ پر بھی فضل ہو جاتا، میں بھی مالا مال ہو جاتا، در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتا، کامیابی میرے بھی قدم چومتی۔ تو وہ مکمل جو طریقہ ہے ہم آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ وہ 2 چھوٹے چھوٹے کام کون سے ہیں، اور آپ نے وہ کام کیسے کرنے ہیں، اور کام آپ نے کس وقت کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اسی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مکمل بتائیں گے، اور جو دوست وہ کام کر لے گا وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔
यानी कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक बारगाह में जब भी हाथ उठाएगा रब्बुल आलमीन उसके हाथों की इल्तिजा को कबूल फरमा लेगा, रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। यकीनन ये रब्बुल आलमीन के कलाम का फैज़ होगा, ये रब्बुल आलमीन के कलाम की ताकत और क़ुव्वत होगी जिसे आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। अगर आप तन्हाई का शिकार हैं, किसी बीमारी का शिकार हैं, या किसी बीमारी या आफत या मुसीबत के अंदर मुब्तला हैं, तो फिर आप ये अमल ज़रूर कीजिएगा। या आप तंगदस्ती का, फाके का, गरीबी का शिकार हैं, तो ये इस वजीफ़े को तोहफ़ा समझकर ज़रूर कबूल कीजिएगा। मैं मुकम्मल तरीका आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा, ताकि हर आने वाले दिन का वजीफ़ा अमल जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। हर आने वाले दिन के अच्छे काम, अच्छी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुखियारी उम्मत के साथ आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो चलते हैं हम अपने अमल की तरफ, अपने वजीफ़े की तरफ कि आपने वजीफ़ा कब और कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी अगर आता है तो वो पढ़ना है, अगर आपको कोई और दरूद भी आता है तो वो भी आपने पढ़ना है। दरूद पाक की बड़ी फजीलत है। दरूद पढ़ने वाला जब भी मरेगा उसे शहादत की मौत आएगी। दरूद पढ़ने वाले को जिस्म के कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे। दरूद पढ़ने वाला जब दुनिया से जाएगा तो ईमान की हालत में जाएगा। दरूद पढ़ने वाले पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत वाजिब हो जाती है। दरूद पढ़ने वाला जब भी फौत होगा उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। सबसे बड़े बढ़कर जो एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दरूद पढ़ता है, रब्बुल आलमीन उस पर 10 मरतबा दरूद पढ़ता है। उस पर रब्बुल आलमीन अपनी 10 रहमतों को नाज़िल फरमाता है, 10 उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है, 10 गुनाहों को रब्बुल आलमीन मिटा देता है। तो आपने दरूद पाक पढ़ना है। आपने तस्बीह के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। डेली का मामूल बना लीजिए कि दरूद पाक मैंने पढ़ना है। तो ये अमल करने से, ये 2 छोटे से काम करने से पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। सवाब की नीयत से दरूद पाक समात कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने दरूद मुबारक, दरूद पाक आपने 11 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दिल लगी के साथ पढ़ना है, तसल्ली के साथ पढ़ना है, सही पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद उसके बाद आपने जो अमल करना है वो भी आप अपने ज़हन के अंदर रख लीजिएगा। उसके बाद आपने पढ़ना है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति। ये आयत मुक़द्दसा ये आपने पढ़नी है। ये आपने पढ़नी है 111 मरतबा। आपने अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ये आपने 111 मरतबा पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद ये तस्बीह पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने हाथों की उंगलियों पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। 111 मरतबा आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं। उसके बाद आपने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु 1 मरतबा हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु 2 मरतबा हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु 3 मरतबा हो गया। ये आपने पढ़ना है 11 बार, सिर्फ 11 बार ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 2 काम हो गए। सबसे पहले आपने दरूद पाक, उसके बाद आपने 111 मरतबा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति, ये आपने 111 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपने सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। ये आपने अमल करना है। और दौरान अमल आपने किसी से कोई
गुफ्तगू नहीं करनी। आप ये 9 मुहर्रम मंगल के दिन फजर की नमाज के बाद आपने ये अमल करना है, फजर की नमाज के बाद आपने ये अमल करना है, या फिर आपने असर की नमाज के बाद ये अमल करना है। ये 2 वक्तों के अंदर आपने ये अमल करना है। और इस अमल को करते वक्त आपने किसी से कोई दुनियावी गुफ्तगू नहीं करनी, किसी से कोई बात नहीं करनी। आपने फजर की नमाज के बाद किबला रुख होकर बैठकर आपने ये अमल करना है। और दौरान अमल आपने किसी से किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। अपने नेक मकसद को, नेक हाजत को आपने अपने दिल के अंदर रख के आपने ये अमल करना है और पूरी तवज्जो के साथ करना है, दिल लगी के साथ करना है, अल्लाह पर यकीन रखते हुए आपने ये अमल करना है। उसके बाद फिर अमल करने के बाद फिर आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक बारगाह में अपने हाथों को उठाना है और अपनी आंखों में आंसू लिए हुए आपने रो कर, गिड़गिड़ा कर, आंखों के अंदर नमी पैदा करके आपने फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हुए आपने ये वजीफ़ा करना है। आपने दुआ मांगनी है। वजीफ़ा तो कर लिया, इसके बाद फिर आपने दुआ मांगनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक बारगाह से आपने रो कर, गिड़गिड़ा कर मांगना है, या अल्लाह मुझ पर रिज़्क़ की तंगी है, मुझ पर रिज़्क़ के अंदर कुशादगी पैदा फरमा, या इलाहुल आलमीन मेरी मुश्किलात को आसान फरमा, मुझ पर ख़ास अपना फजल फरमा, या इलाहुल आलमीन बीमारियों से निजात अता फरमा। आपने जो भी दिल के अंदर तमन्ना है, नेक आरज़ू है, नेक हाजत है, उसको आपने अपने दिल के अंदर रख कर आपने दुआ मांगनी है। तो यकीनन जब आप अल्लाह पर यकीन रखते हुए पूरी तवज्जो के साथ अगर आप दुआ मांगेंगे तो फिर साथ ही आपने सच्ची तौबा कर लेनी है। अगर कोई गुनाह के मुर्तकिब है तो सच्ची तौबा करनी है, या इलाहुल आलमीन आइंदा से ज़िंदगी के अंदर कभी भी मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा, सच्ची तौबा करता हूँ। ये आपने अमल करना है और गुनाहों से तौबा करनी है, रिज़्क़ हलाल खाना है और फिर अमल करने के बाद दुआ मांगनी है। दुआ मांग कर जब आपने उठना है उस वक़्त आपने 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ये अमल से बाहिर है, ये उन 2 कामों से इलाज है। ये पढ़ेंगे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर अपना ख़ास फजल फरमा देगा। ये हमने आपको वजीफ़ा बताया है, ये वजीफ़ा है 9 मुहर्रम का। ये 9 मुहर्रम के दिन अगर कोई तस्बीह पढ़ेगा तो रिज़्क़, पैसा, दौलत, ये शोहरत, इज्जत सब कुछ रब्बुल आलमीन उसे अता फरमा देगा। उसकी हर दुआ को रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेगा। ये अमल आपने लाजमी करना है। इसी अमल को आपने अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारों के साथ आपने ज़रूर शेयर करना है और सदका जारिया समझते हुए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों के लिए आपने ख़ुसूसी दुआ करनी है और मुल्क के जो वफ़ादार हैं उनके लिए भी आपने दुआ करनी है, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए आपने दुआ करनी है, जिनके पास औलाद नहीं उनके लिए भी आपने दुआ करनी है। क्यों? क्योंकि आपने ये अमल किया होगा, रब्बुल आलमीन आपकी ज़ुबान से निकलने वाले हर कलमे को कबूल फरमा लेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रब्बुल आलमीन हम सब का हामी व नासिर वस्सलाम।